May I request our Honorable Chairman before joining to speak a few words. आई थिंक मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है आज. आई थिंक आप मीडिया कैन आस्क मी क्वेश्चंस लेटर. पहले आप हमारे जो सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी से मेंबर फॉर्मर TSU लीडर एज वेल एज स्टेट सेक्रेटरी से आप उनका व्यू सुन लीजिए, ट्राइबल यूथ फेडरेशन से. क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, पहले उनको अपना दिल का बात बोलने दीजिए. उसके बाद इफ़ द मीडिया वांट्स टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस कोई भी इशू में, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ. लेकिन आज स्पॉटलाइट मेरे ऊपर नहीं, इनके ऊपर होना चाहिए. और इनके साथ जो लोग आए हैं और वो क्यों त्रिपुरा मोथा ज्वाइन कर रहे हैं, थानसा के लिए क्यों आ रहे हैं, ये उनका भी आप सुन लीजिए. उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क. নমস্কার সবাইকে, যতন ভাইকে আমি চাই, যেহেতু আমার মাতৃভাষা হচ্ছে কলপুরক. কলপুরক আমাদের রাজ্যের প্রায় সমগ্র ট্রাইবেলের মধ্যে অনেকেই লোকেই কলপুরক ভাষাটা জানে. তখনই কলপুরকটাই বলবো, পরবর্তী সময় আমি বাংলাতে বলবো. তারপর হচ্ছে আমি আজকে দীর্ঘদিন পর আমি আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় ছিলাম আমি মহারাজের আহ্বানে আসব এবং আমাদের যে এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে নতুন যে চিন্তা ভাবনা, এই চিন্তা ভাবনার সাথে আমিও নিজেকে সামিল করুন. মহারাজ দীর্ঘদিন ধরে আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল, সমগ্র রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু আমি হয়তোবা নিজেকে মনে করি আমি হয়তোবা দেরি করে ফেলেছি. আমরা দেখেছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেটা একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই. মানুষের কথা বলা, কী করে মাথা দাঁড়িয়ে বাজার হাতে চলাফেরা করার সেরকম একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই. সেই জায়গাতে সেরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদেরকে দেখিয়েছে আমাদের মহারাজা কী করে লড়াই করতে হয়, কী করে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের রাজ্যের যে একটা পথের দিশারি হিসেবে দেখাতে হয়, এটা মহারাজ আমাকে দেখিয়েছেন, আমাদের দেখিয়েছেন. শুধু আমাকে না, আমি তা নয়, এই যে ওনার যিনি যেরকমভাবে লড়াই, এই লড়াইয়ের প্রতি আমি নিজে অভিভূত. সেই জন্যই আমি দীর্ঘ বছর আমি হয়তোবা অন্য একটা চিন্তাধারায় আমি আমার জীবন, আমার ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন সব কিছু আমি একটা অন্যরকম ধারার মধ্যে আমি ছিলাম. আজকে আমি সেরকমভাবে আজকে মহারাজার সাথে সামিল হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি. মহারাজাও আমাকে সেরকমভাবে স্থান দিয়েছেন. আমি চাই এই রাজ্যের সমগ্র অংশের, শুধু উপজাতি অংশের মানুষ না, সমস্ত অংশের মানুষ আজকে যে মহারাজার যে চিন্তাধারা, উনি যে কথা বলছেন, এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া, শুধু পিছিয়ে পড়া না, আমাদের উপজাতি অংশের মানুষের অধিকার যেরকমভাবে আমরা দীর্ঘ বছর ধরে আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত, এই অধিকারটা আদায় করতে গেলে এই মহারাজার পথে আমরা অনুসরণ করতে হইব. সেই জন্য আমি ত্রিপুরার সমগ্র শুধু উপজাতি অংশের মানুষ না, এবং আমার মতো যারা আজকে দীর্ঘ বছর বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, আপনারা চিনেন হয়তো আমাকে, আমি টিওয়াইবের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম এবং ছাত্র সংগঠনের অর্গানাইজেশনের SFI অল ইন্ডিয়া CC সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার ছিলাম, ডিওয়াইফের অল ইন্ডিয়া CC সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার ছিলাম. দীর্ঘ বছর আমার 30 থেকে 35 বছর ওইখানেই আমার ছাত্র জীবনটা কেটেছে. তাই এইখানে আমি চাই আমাদের যে, এটা সবাই জানে যে দীর্ঘ বছর ধরে আমাদের যে ইতিহাসের যে দিকে যদি আমরা দেখতে চাই, যে আমাদের ত্রিপুরা ছিল একটা সময় রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা. প্রায় সহস্র বছরের অধিক আমাদের এই রাজ্য আমাদের মহারাজাদের শাসনে ছিল. এই ত্রিপুরা অটোমেটিক্যালি দীর্ঘ বছর আমাদের ট্রাইবেলরাই সেরকমভাবে পপুলেশনের দিক থেকেও মেজরিটি ছিল. কিন্তু আপনারা জানেন দেশভাগের পর আমাদের রাজ্যের মধ্যে
অন্যায়ভাবে আমাদের এই যে ছোট্ট একটা ত্রিপুরার মধ্যে যারা গ্যাসবাগের শিকার হয়ে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে যেরকমভাবে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের প্রতি আমি অন্যায় কিছু ঘৃণা বোধ করি না, তাদেরকে ধন্যবাদই জানাই। কিন্তু আমাদের ভারত সরকারের দায়িত্ব ছিল সেই সময় শুধু আমাদের ত্রিপুরা না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে এই যে যারা দেশভাগের চক্রান্ত হয়ে আমাদের যে বিতাড়িত হয়ে আমাদের যে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে যারা আসতে হয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের এই ত্রিপুরার মধ্যে যেরকম যেই পরিমাণে লোকজন দিয়ে মানে আশ্রয় দিয়ে আমাদের যে ট্রাইবেলদের যে জনসংখ্যার যে ভারসাম্যটা মানে রাজ্যের যে জনসংখ্যার যে ভারসাম্যটা হারিয়ে ফেলা হয়েছে, এটা মারাত্মক অন্যায়। এখন যেখানে আমাদের হাতে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার বলতে নাই বললেই চলে, এইখানে আমাদের অন্যের উপর ভিক্ষা করে চলতে হয়, এরকম আমরা ত্রিপুরা চাই না। এবং দীর্ঘ বছরে আমরা সেরকমভাবেই আমাদের যেহেতু মহারাজাধীন শাসনে আমরা ছিলাম, আমি আশা রাখবো আমাদের এই রাজ্যে সমগ্র অংশের উপজাতি অংশের মানুষ শুধু না, আমাদের শিক্ষিত অংশের মানুষরা এগিয়ে আসা দরকার। মহারাজার স্লোগানের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার। আমি কখনো কয়েকটা কথা বলি এবং আমি যতন কুলঙ্কার তাকতাই বিপক্ষম তিনি দীর্ঘ বছর ট্রাইবেল এড ফেডারেশন, ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং সিপিআইএমনি দায়িত্ব হোক। आं तिनी अनेक दिन आगे आं फाइनाल कप दंगानी आं फाइनाल मोसुंखानो किन्तु आं जरा समय रिलियानो बागै आं तिनी जइन खाइया आं आशा खाइनाय जेरकम महाराज चिनी त्रिपुरा जन आगाव बैख्लांनायनि बागै ग्रेटार त्रिपुरालानि बागैनि कक सामानि आबोनो जों लड़ाई खाइनायनि बागै चिनी त्रिपुरा सरक ते मथासांलै जों थामसांलै यात्री बाक्सां मांगनाय अ यात्री बाक्सानि आंदोलन जतन सामिल नायनि बागै आनि जारा दाउ टिवाइफ फ्लाइ दंनाय যারা 23 ফ্লাই দंनाय अमहाय ताककताय बुकुचंनां जतन कबो नरगो आं दिनै जेरकमबे सिद्धांत नाखा आगामी दिनाव फाइनाय सालाव नरगो अमहाय लामा नां दमथुन आं आशा खाइनाय नरग जतन फाइनाय दिनै आं फाइके आमसिया तेव फाइनायखौ आलोचना चलिदों आंनि लगे तेबो दङ आं आशा खाइनाय जतन ও আন্দোলন সামিল নানি আমি শেষ মাসে একটা কথাই বলবো। আপনারা সবাই জানেন এই রাজ্যের যৌবনের অধিকাংশ অংশই হচ্ছে আমাদের মহারাজাই হচ্ছে মূল এখন শক্তি। যৌবন তুমি আগুন হও, লাল পলাশের ফাগুন হও, কারণ নংখা শিকলারক নং হর মিনি মাবা চানাই বসন্তকাল যেরকমভাবে খুমকিয়গৈ ফেমা হাই আমার কেন মামা চাংনাই জড়াও অশিকলারক যদি মথাসাংনি তিনি হরঙ্গি বাচা খানকে চিনি মানথাই চিনি সাংবিধানিক অধিকার जों आदाय खानायनि खेत्रआव केवल जोंनो रुको गिनार गुनाया ओ आमदानो तेबो क्राख्लाय खानायनि बागै आं तिनि सामिनका जतन खालामो रंजन যাকে প্রশ্ন দীর্ঘদিন আপনি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে ছিলেন, গণমুক্তি পরিষদ দশরথের এই বর্তমানেও আজকে গতকালকেও দিব আমি গণমুক্তি পরিষদের জম্বুই জেলা একটা সাব ডিভিশনাল সেক্রেটারি। ঠিক আছে, এই গণমুক্তি পরিষদ এক সময় দাবি করতো যে জনজাতিদের উন্নয়নে তারা কাজ করেছে, শিক্ষা আন্দোলনে কাজ করেছে। আপনি এত বছর ধরে কাজ করলেন, হঠাৎ করে আপনি বামপন্থী আন্দোলন ছেড়ে মহারাজার সঙ্গে কেন? না, এটা শুধু গণমুক্তি পরিষদ আমরা বলি না, রাজ্যের যে শিক্ষা আন্দোলনের যে ইতিহাস যদি আমরা উত্থাপিত করি, এই যে বীর বিক্রম মহারাজা বীর বিক্রম কলেজটা এটা মহারাজাই তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই কলেজের ছাত্ররা। তবে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন আমি অস্বীকার করি না। জনশিক্ষা সমিতি সমগ্র রাজ্যের মধ্যে এটা একটা শিক্ষার যে আলোড়ন তৈরি করবার ক্ষেত্রে তারা একটা দুর্বার গতি নিয়ে কাজ করছিল, এটা আমি অস্বীকার করি না। এই কথা আমি বরাবরই বলবো। আমি আজকে মহারাজার সাথে থাকলে পরেও জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনকে আমি ক্ষুণ্ণ করব না। কারণ জনশিক্ষা সমিতির দ্বারা যেরকমভাবে 300-এর অধিক স্কুল তারা নিজস্বভাবে স্কুল তৈরি করে যে আন্দোলনটা চালিয়েছিল, তার জন্য আমরা গণমুক্তি পরিষদ তৎকালীন সময় মানে বলতাম মানুষের কাছে, আজকেও বলবো মহারাজের যে আজকে যে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, উমাকান্ত যেটা শিক্ষা মানে উমাকান্ত যেটা একাডেমি, এটা তো মহারাজের আমলের তৈরি করা।
আমরা এটাই বলতে চাই, শিক্ষার আন্দোলন সবাই এই রাজ্যে জড়িত, শুধু গণমুক্তি পরিষদ না। আগামী দিনে মহারাষ্ট্র যেরকমভাবে আজকে শিক্ষার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে, এই আন্দোলনে সামিল হতে চাই। अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है, আপনি একটাই জয়েন করছেন আর আপনার সাথে কেউ আছে? আজকেও আছে অনেকজন। হ্যাঁ, আমাদের গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়রামপাড়া ভিলেজ কমিটির আমাদের এক চেয়ারম্যান, উনি হচ্ছে কুলঙ্গার কর্মী, মোট কত জন আসতেছিল, কিন্তু আমাদের যে টাইমটা সমস্যা হবে, আর ওই এলাকা থেকে এখানে আমরা মহারাজের সাথে কথা আছে, জম্মু জেলার একটা মাছ র্যালি হবে ওই এলাকাতে, অনেকজন। आज जो मीटिंग है जिसको आपको इंटीमेट करने के लिए ऑफिशियल ज्वाइनिंग जम्पुई जिला टाकार जिला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, गोलाघाटी के अंदर होगा। एंड इससे पहले भी आज सवेरे IPFT के 2 AGS हैज़ ज्वाइन तिपरा मौथा। आने वाले दिन में मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग तिपरा मौथा। कल OMPI के रैली में ऑलमोस्ट 586 लोग बीजेपी से तिपरा मौथा IPFT तिपरा मौथा ज्वाइन किए। फॉरबुक में ऑलमोस्ट 935 लोग ने तिपरा मौथा ज्वाइन किए। तो पिछले एक दिन में ही 1500 लोगों ने तिपरा मौथा ज्वाइन किया। लेकिन हमारा सिस्टम फ्लैग हाथ में देकर तिपरा मौथा को ज्वाइन कराने का सिस्टम नहीं है। हम लोग वीसा दे के हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में सम्मान दे के सबको लाना चाहते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि मैंने इनको क्लियरली कहा है, आप गणमुक्ति परिषद छोड़कर तिपरा मौथा में आ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गणमुक्ति परिषद को गाली दो या ख़राब बोलो, ये मेरा कल्चर भी नहीं है। आपने जो पार्टी को छोड़ा है उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके खिलाफ 10-12 चीज़ गलत बात बोलो। आप तिपरा मौथा में आए हो ग्रेटर तिपरा लैंड के मूवमेंट के लिए। आज के दिन ये ग्रेटर तिपरा लैंड मूवमेंट के लिए कोई गणमुक्ति परिषद से हो, जनजाति मोर्चा से हो, कांग्रेस के ST सेल से हो, कोई भी पार्टी से हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन तिपरा मौथा। तिपरा मौथा एज अ मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल पास, और सब वेलकम है। एनी जो भी हमारा डिमांड को समर्थन करता है या सिंपैथेटिक है, तिपरासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हमारा डिमांड को एक ऐसे नज़रिए से देखता है जो हमें समर्थन करता है, दे आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं फाइट कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ अपना पॉलिटिकल करियर आगे ले जाए। वी वांट पीस, वी वांट ट्रैंक्विलिटी एंड वी डोंट वांट वायलेंस। आज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, पीपल कैन डिसएग्री विद अस, आपका अधिकार है हमसे डिसएग्री करने के लिए, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे जिन्ना बोल दिया, बहुत लोगों ने हमें पाकिस्तानी बोल दिया। आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज़ नॉट द कल्चर ऑफ त्रिपुरा एंड दिस शुड नॉट बी द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। স্যার কিছুক্ষণ আগে দেখা গিয়েছে মান্দা এলাকার মধ্যে বিজেপি পার্টির অফিস আগুন দেওয়া হয়েছে, কে দিয়েছে কেউ বলতে পারেন না, পুলিশ গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে কী বলবেন? I'll add one thing. Allegation came against your party from several parties that your party workers have set fire on these offices. Then they should arrest me. Point is, allegations have gone from CPM also that BJP people have attacked. Allegations have gone from Tipra Motha also that BJP people have attacked them. जुलाईबारी में क्या हुआ? तो हमने भी एलिगेशन दिया था कि पिनाकनाथ को अरेस्ट होना चाहिए विश्वजीत देववर्मा के मर्डर के बाद, जो मोबाइल फ़ोन कैमरा में आया था, कोई अरेस्ट हुआ है? पॉइंट है कि ये सब चीज़ फ्री एंड फेयर होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अ फ्री एंड फेयर कॉल ऑन दिस थिंग्स। सर, पाताल कन्या जमातिया जिस दिन ज्वाइन किया है, उसके पहले दिन भी अटैक हुआ था, तो वो लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि तिपरा मौथा से ही हो रहा है, और अभी भी यही एलिगेशन है। और मेरे ऊपर अटैक हुआ था सबके सामने 16 तारीख को दिसंबर को, कोई अरेस्ट हुआ है? मेरे ऊपर SDM के ऊपर अटैक हुआ था मोहनपुर में, ADC के, वो फेसबुक लाइव में आप लोगों ने सब देखा, वो तो जेन्युइन अटैक था, कोई अरेस्ट हुआ है? तो ये सब चीज़ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जहाँ में किसी ने कानून तोड़ा है पुलिस शुड टेक एक्शन। लेकिन मैं गलत काम को कभी समर्थन नहीं करूँगा, और मैं गलत लैंग्वेज को भी कभी समर्थन नहीं करूँगा।
सर एडीसी इलेक्शन से पहले पाताल कन्या जी को आपके साथ देखा गया था, फिर अचानक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ये बोला कि वी डोंट वांट तिपरालैंड, वी वांट खानसा ओनली, यूनिटी ओनली। और पाताल कन्या जी जब बीजेपी में ज्वाइन किया उसमें तिपरामथा को कितना नुकसान या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो हम तो प्रॉफिट और नुकसान में नहीं जाते हैं। पाताल कन्या का खुद का पार्टी है था, त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट। उन्होंने अपने पार्टी को बीजेपी के संग मर्ज कराया है। उनको ग्रेटर तिपरालैंड नहीं चाहिए, वो उनका अधिकार है। उनको वो ग्रेटर तिपरालैंड को विश्वास नहीं करती, वो उनका अधिकार है। अगर वो बीजेपी में जाकर बात करना चाहती, वो उनका अधिकार है। मैं पाताल कन्या ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसमें मैं कोई अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ। मेरा व्यू देने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उन्होंने ग्रेटर तिपरालैंड को बोला है कि पॉसिबल नहीं है, वो उनका व्यू है। उन्होंने 2-3 चीज़ और भी बोला है, वो उनका व्यू है। अब आप ये सवाल उनसे पूछिए। अगर बीजेपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली में बैठा है, अगर वो बोलता है कि ग्रेटर तिपरालैंड ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है, तो फिर हम उसका जवाब ठीक तरीके से देंगे। क्योंकि जो हमारा डिमांड है ग्रेटर तिपरालैंड का, वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि सिर्फ तिपरासा का डिमांड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरे इंडिया में सबको अधिकार है अलग राज्य मांगने के लिए, तब वो कानून पास कर ले, तब हम नहीं डिमांड करेंगे। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि हर नागरिक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, आई डोंट थिंक दे कैन कॉल अस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और टेररिस्ट और people who and put allegations on us. Maharaj, you have already cleared that there will be no talk of alliance with the BJP. There will be no talk of alliance with the BJP. पाताल कन्या ने स्टेटमेंट दिया है, बीजेपी ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पाताल कन्या का पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है, देन अलायंस पॉसिबली नहीं है। अगर बीजेपी बोलता है कि बात करने के लिए वो तैयार है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम रेडी है बात करने के लिए। लेकिन अगर उनके लीडर ने कह दिया है कि ये डिमांड कभी पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि आई थिंक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सुनील देवदत्त जी ने कहा था कि एनसी बाबू समझ ले कि तिपरालैंड नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अगर एनसी देवदत्त विपक्ष में बैठ जाता तो आज IPFT का पोजीशन और हाई हो जाता। हम लोग इतना, अगर किसी ने हमें कहा कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा और वो बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन है, तब हम बीजेपी के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं? हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत स्टेटमेंट है, तो उनको क्लैरिफाई करने बोलिए। लेकिन मैंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं देखा। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे बोल सकते कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? विलेज काउंसिल का इलेक्शन आप लोग फाइट कर रहा है और जो इसमें बिल भी आपने पास किया है और यहाँ में फाइनेंशियल बातें भी खत्म हो चुका है, आप भी इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें किसका नुकसान और फायदा हो रहा है? और नुकसान तिपरासा का हो रहा है, नुकसान हम सब तिपरासा का हो रहा है, आम नागरिक का हो रहा है। क्योंकि किसी ने हम लोग को छोटा पार्टी बोला था, हम लोग छोटा पार्टी है, बीजेपी बड़ा पार्टी है। अगर उनको इतना उनको लगता है कि हम लोग छोटा है, तो आप विलेज काउंसिल इलेक्शन करा दीजिए अगले 1 महीने के अंदर। हम लोग तैयार है दिखाने के लिए कि हमारे पहाड़ में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कर रहा है विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, उसका वजह क्या है? आपने अगरतला में इलेक्शन कर दिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने उत्तर प्रदेश गोवा में कर दिया, आपने पंजाब में कर दिया, मणिपुर में कर दिया, तो हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? कोई कहता है कोरोना है, कोरोना वायरस है इसके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वायरस है।
मुझे लगता है कि थानसा वायरस है वहाँ में और वो लोग इलेक्शन करने से डर रहे हैं। Today, leaders from CPI and also from IPFT joined your party. So can we expect more? Yes, you can expect more. See, मैंने इनको नहीं देखा कि इज कम्युनिस्ट, ठीक है। मैं आज भी जितेंद्र चौधरी को बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज भी अतुल देव वर्मा को बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज भी जिष्णु कर्ता को बहुत इज्जत करता हूँ। आज भी अगर गण मुक्ति परिषद से बहुत लीडर्स लोग आना चाहते हैं, मैं इज्जत करता हूँ। मेवाड़ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारे वृश्चिक तो है यहाँ में, बीजेपी IPFT से है, अपना धनंजय है, अपना सिंधु जमातिया है, गीता देव वर्मा है, बहुत लीडर्स है, सबके संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। बीजेपी में भी प्रमोद रियांग है, बहुत लोग हैं। मैं सिर्फ बुरबो मोहन है, DC राम खोले, मेरे साथ कांग्रेस में थे DC राम, तो मुझे कोई आपत्ति, आई डोंट हैव एनी वरी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट दे शुड कम टुगेदर एंड टेल मी वन थिंग। आई मीन, आप लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किताब उठा लीजिए और आर्टिकल 2 और 3 पढ़ लीजिए, और अगर उसमें लिखा है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का संविधान इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया बट नॉट इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, देन आई एम विलिंग टू कीप क्वाइट।